to all my dear students. I hope you all are fine and doing well. Okay, today we are going to learn about the tool of find and replace in Microsoft Word. So basically you all know that Microsoft Word is used to create documents. So if you want to write a picture, if you want to write your essay, your poem, your application, then you will use Microsoft Word. Okay, so here I have two paragraphs in Microsoft Word. As you can see, this one is the paragraph 1. Okay, and this one is the second paragraph. Okay, now if I want to find out some words in my whole paragraph, and suppose I have 100 of pages, and I want to select some words. For example, if I want to select some words, then what I can do? So here you can see on this home tab, we have a group editing. So if you want to make correction, make changes, basically we will do editing. So here you can see, here we have a find and here replace. So for example, if we want to find a word in this whole paragraph, so without reading, so simply you just have to click here on this find. A window will appear on your screen. So here you can see, this is find, this is replace. So simply you have to enter here a word which you want to find in your document. For example, if I want to, this, as you can see, this is the document. So simply if I will write here document. Okay, so how many words the document is present in this document? So basically you just have to find this next. As you can see, document, 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 document. Okay, as you can see, we have many times document. So simply if we want to replace this word with some other word, simply just have to click here document on this replace option. As you can see, this document. So here you have to replace this word document with some other word. For example, if I want to replace this word document with the word of computer. Okay, so I'm typing here computer, and here you have to click on this replace all. If you want to replace this word one by one, then you have to press replace, and if you want to replace all these words one time, then you have to press replace. Okay, as you can see, a message came here, word has completed its search. That's mean our search is, our work is done of the document and has made 7 replacements, and we have 7 words of document which is replaced by the word of computer. Okay, and simply at the end you have to press close. Okay, now in this document, as you can see, there is not any kind of word document, so all the words are replaced by computer. Okay, this is computer, computer. Let's do one more example. Simply let's, for example, if I will highlight pictures. Okay, pictures, and I have okay, simply you just have to click again on this replace option, and here you have to write the word which you want to with which you want to replace. So for example, if I'm writing cartoons. Okay, and simply replace all. Okay, here it is saying that there we have a one word which is replaced. Okay, close. Okay, as you can see, here it was pictures, and which I select in blue color, so it is replaced by the word cartoon. So you can use this feature find and replace if you have your document in which there are many pages, many text, a lot of text. So if you want to replace those words, simply just have to use this feature. So you have to do practice this in your PC. I hope you will understand, and if you have any question, then you can ask me in Google Classroom or on WhatsApp. Thank you, students. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all dear students. I hope you all are fine and doing well. So today the topic is
कॉपी कट एंड पेस्ट। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉपी कट एंड पेस्ट। हम अपने डाटा को या टेक्स्ट को किस तरह से कॉपी कर सकते हैं, उसे कट कर सकते हैं और उसे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉपी। कॉपी का मतलब है जैसे कि अगर हमारे पास कोई एक चीज़ है तो हम सिंपली उसका क्या करेंगे, उसकी एक और फोटोकॉपी सेम उसी की जगह उसी की तरह क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कट। कट का मीनिंग है कि हम क्या करेंगे, उस चीज़ को उस जगह से कट कर देंगे। ठीक है, एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेस्ट, कि हम उसको किसी और जगह पर जाके पेस्ट कर देंगे, किसी और जगह पर जाके रख देंगे। अब ये हम करेंगे किस तरह से, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखती हूँ, कंप्यूटर। ठीक है, अब ये मैंने सिंपली क्या किया, एक वर्ड टाइप किया कंप्यूटर। अब हम इसको कॉपी किस तरह से करेंगे, तो आपने सिंपली क्या करना है, अपना माउस का जो कर्सर है, ये जो ब्लिंकिंग लाइन है, दिस इज माउस कर्सर। आपने माउस कर्सर को इधर रखना है एंड पर या इधर स्टार्टिंग पर रख लें वर्ड के। आपने सिंपली क्या करना है, वर्ड को इस तरह से सिलेक्ट करना है। जब आप वर्ड को सिलेक्ट करेंगे तो ये ब्लू कलर में हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, अब आपने सिंपली क्या करना है, माउस का जो है राइट बटन उसको प्रेस करना है। मैं माउस के राइट बटन को क्लिक करती हूँ तो मेरे पास एक ये मेन्यू लिस्ट अपीयर होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरे पास एक ऑप्शन है कॉपी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है कॉपी की। सिंपली आपने इस पर क्लिक किया। अब मैं नेक्स्ट लाइन में मूव करूँगी, एंटर की मैंने यहाँ से एंटर की प्रेस की, नेक्स्ट लाइन में आई और सिंपली मैं यहाँ पर आके अगेन राइट की प्रेस करूँगी। तो अब देखिए मेरे पास कॉपी की ऑप्शन नहीं है, पेस्ट की ऑप्शन आ रही है। कॉपी की क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने अपने टेक्स्ट को या अपने वर्ड को कॉपी कर लिया है। तो अब मैं सिंपली उसे क्या करूँगी, पेस्ट। तो अब आप देखें कि मुझे वो वर्ड कंप्यूटर दोबारा से टाइप करना नहीं पड़ा और मैंने सेम उसी तरह से वर्ड क्रिएट कर लिया। किस तरह से, कॉपी करके और पेस्ट कर दिया। ठीक है, नाउ ट्राई विद वन मोर वर्ड, बुक्स। किस तरह से कॉपी करेंगे, सिंपली आपने कोई वर्ड टाइप किया, उसको माउस से सिलेक्ट किया, जब सिलेक्ट होगा तो ये ब्लू कलर में हाईलाइट होगा। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में आए, यहाँ से कॉपी पे क्लिक कर दिया, नेक्स्ट लाइन में मूव किया एंड क्लिक ऑन दिस पेस्ट। ठीक है, जब पेस्ट होगा तो उसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज पेस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेस्ट। अब हम पेस्ट किस तरह से कर सकते हैं, बल्कि ये कॉपी और पेस्ट हमने कर लिया, अब हम देखेंगे कि हम कट एंड पेस्ट किस तरह से कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पर अगेन से कोई वर्ड टाइप करती हूँ, लैपटॉप। ओके, सिंपली लैपटॉप मैंने वर्ड टाइप किया, मैं इसे माउस से सिलेक्ट करती हूँ। ठीक है, अब ये देखें हाईलाइट है, अगेन राइट क्लिक करूँगी और एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा, एक लिस्ट अपीयर होगी। मैं सिंपली यहाँ से क्या करूँगी, कट। ठीक है, तो अब देखिए मेरा वो वर्ड वहाँ से कट हो गया और मैं नीचे मूव करती हूँ और सिंपली यहाँ से अगेन राइट क्लिक करूँगी, जो अपीयर होगा मेन्यू उसमें से मैं क्या कर दूँगी, पेस्ट। तो सिंपली कट एंड पेस्ट से क्या हुआ, मेरा वर्ड उस लोकेशन से ख़त्म हो गया और न्यू लोकेशन पर जाके पेस्ट हो गया। सो दिस इज़ कॉपी एंड पेस्ट एंड दिस इज़ कट एंड पेस्ट। ठीक है, एक और वर्ड ट्राई करते हैं कट एंड पेस्ट के साथ। मैं लिखती हूँ साइंस। सो अब आप सिंपली इसको किस तरह से कट एंड पेस्ट करेंगे, मैं सिंपली सेलेक्ट किया इसे माउस से। ठीक है, एंड राइट क्लिक और मैंने कर दिया कट। ठीक है, अब देखें वर्ड उस जगह से वो गायब हो चुका है, डिसअपियर हो चुका है। मैंने सिंपली नेक्स्ट लाइन में मूव किया और यहाँ पर आऊँगी तो अगेन मैं राइट क्लिक करूँगी और पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं एक सेंटेंस के साथ कि हम एक सेंटेंस को किस तरह से कॉपी कट और पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई रीड इन लाहौर मकतब इस्लामिक ओके। मैंने सिंपली क्या किया, ये टाइप किया, इसको सिंपली आपने सेलेक्ट करना है माउस से। ठीक है, और मैं क्या करूँगी, इसको कॉपी, राइट क्लिक किया,
एक मेन्यू लिस्ट अपीयर हुई और कॉपी कर लिया। और मैं अब नेक्स्ट लाइन में क्या करूँगी, इसको एंटर प्रेस करके पेस्ट। ठीक है, तो आप देखिए मुझे दोबारा से टाइप करना नहीं पड़ा और मैंने उसी सेंटेंस को कॉपी कर लिया। तो कॉपी करने से क्या हुआ, मेरे पास सेम उसी की तरह से टेक्स्ट मेरे पास क्रिएट हो गया। अब हम करते हैं कट एंड पेस्ट। ओके, कट एंड पेस्ट। कट एंड पेस्ट में क्या करूँगी, मैं क्या करती हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, सिंपली मैंने राइट क्लिक किया और कर दिया कट। कट से उस जगह से डिसअपियर हो गया। अब मैं टॉप पर आती हूँ इधर और यहाँ पर आके क्या करूँगी, पेस्ट, राइट क्लिक पेस्ट। तो अब आप देखें कि मेरे पास नीचे वहाँ से मैंने कट कर लिया और टॉप पर आके पेस्ट कर दिया। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल द क्लास। आपने इसी की प्रैक्टिस करनी है। मैं आप कोई भी वर्ड्स ले सकते हैं, कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं, या कोई भी पैराग्राफ टाइप करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और उसकी प्रैक्टिस करें हम किस तरह से कॉपी कट और पेस्ट कर सकते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all dear students. I hope you all are fine and safe at your home and doing your studies. So in this lesson we are going to learn a new topic, that is how we can save any other location. In the previous lesson we were discussing about the advantages and disadvantages of using a computer. पिछले लेसन में हमने देखा था कि कंप्यूटर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, और इस लेसन में हम देखेंगे कि हम अपनी फाइल को डेस्कटॉप पर या किसी भी और लोकेशन पर किस तरह से सेव कर सकते हैं और उसमें सेव एज किस तरह से कर सकते हैं अपनी किसी भी फाइल को। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। First of all we will see what is the difference between save and save as. आप जब कंप्यूटर यूज़ करते हैं, अपना काम करते हैं, आप अपनी फाइल को जब सेव करते हैं तो आपके पास टू ऑप्शंस अपीयर हो रही होती हैं। द फर्स्ट वन इज सेव एंड द नेक्स्ट वन इज सेव एज। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज। तो जो सेव ऑप्शन है, बेसिकली सेव का मतलब होता है आप अपनी किसी भी फाइल पर काम करें और फर्स्ट टाइम आप जब भी उसको सेव करते हैं तो आप क्या करेंगे, हमेशा आप उसको सेव करेंगे। या आप अपने डाटा में किसी भी किस्म का कोई चेंज करते हैं, लाइक आपने लिखा माय नेम इज़ फातिमा और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उस पर सेव कर देंगे। इसके बाद अगर आप कोई और सेंटेंस लिखते हैं, माय नेम इज़ आई रीड इन क्लास 1 2, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको दोबारा से सेव प्रेस करते जाएंगे, सेव एज, आप उसको सेव प्रेस कर देंगे, कंट्रोल एस भी प्रेस कर सकते हैं। सो फर्स्ट टाइम जब भी आपने अपनी फाइल को सेव करना है, व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट प्रेस ऑन द सेव बटन। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज। सेव एज का मतलब है कि आप अपनी फाइल को जब भी सेव कर रहे हैं वो फर्स्ट टाइम करते हैं, लेकिन अब आप अपनी फाइल को किसी और लोकेशन पर सेव करना चाह रहे हैं या किसी न्यू लोकेशन पर सेव करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, सेव एज। सो सेव एज बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपने डाटा को एक न्यू लोकेशन पर या एक नए नेम के साथ सेव कर सकें। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज। सेव से हम क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल में किसी भी किस्म का कोई चेंज करके हम उसको सेव करेंगे तो हमारी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। सो इस तरह से आप एक शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। उसका मतलब है, शॉर्टकट की का मतलब है कंट्रोल और एस को अगर आप इकट्ठा प्रेस करेंगे तो आपका जो डाटा है वो सेव हो जाएगा। वो सेम काम कर रहा है सेव की तरह। और अगर आप अपनी फाइल में किसी भी किस्म की कोई चेंजिंग करते हैं और अपनी फाइल को किसी न्यू लोकेशन पर या किसी न्यू नेम के साथ सेव करना चाह रहे हैं, तो आप क्या प्रेस करेंगे, सेव एज। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस। मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल ओपन कर लेती हूँ। मैंने स्टार्ट बटन पर क्लिक किया यहाँ पर, और यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ ऑल प्रोग्राम्स, देन आई विल क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड देन आई विल क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। इस पर क्लिक करने के बाद अब ये देखिए मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो विंडो है वो अपीयर हो गई है। अब मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर लेती हूँ। मैं इसका फर्स्ट ऑफ ऑल फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करके मैं यहाँ टाइप करती हूँ माय नेम इज़ फातिमा, आई रीड इन क्लास 2। ओके, और उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं जैसे ही अपनी इस फाइल को फर्स्ट ऑफ ऑल सेव करूँगी तो अब आपने देखना है डिफरेंस क्या आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको एक बटन नज़र आ रहा है जिसका नेम है ऑफिस बटन।
कुछ प्रोग्राम्स में आपको इसका नेम फाइल बटन मिलेगा, लेकिन कुछ प्रोग्राम्स में इसका आपको नेम ऑफिस बटन मिलेगा. सो यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस ऑफिस बटन और यहाँ पर आपके पास हेयर यू कैन सी द ऑप्शन ऑफ सेव एंड सेव एज. अब आपने क्या करना है, सेव पर क्लिक करना है. अब देखिए सेव पर क्लिक कर रही हूँ और मेरे पास यहाँ पर एक विंडो अपीयर हो रही है. मैं यहाँ पर सेव करती हूँ डेस्कटॉप पर. मैं सेव करती हूँ फातिमा के नेम से. ठीक है, मैंने फातिमा के नेम से फातिमा का नेम टाइप कर दिया फाइल नेम में और यहाँ पर क्लिक कर दिया सेव पर. तो देखिए मेरी फाइल सेव हो चुकी है. अगर आप इसको मिनिमाइज करें तो यहाँ पर ये फातिमा के नेम से आपकी फाइल डेस्कटॉप पर अपीयर हो रही है. अब मैं क्या करूँगी, मैं इसमें कोई और सेंटेंस टाइप करूँगी. आई लाइक टू स्टडी कंप्यूटर. आई लाइक टू स्टडी कंप्यूटर. अब मैं अगर इस पर दोबारा क्लिक करूँ फाइल बटन और मैं सेव पर क्लिक करती हूँ तो ये देखें आपका क्या हुआ है, आपकी उसी फाइल में चेंज हो गया है. ठीक है, आपकी उसी फाइल में सेव होता जाएगा. जो भी आप चेंज करेंगे आपकी सेम फाइल में रहकर वो चेंज हो जाएगा. अगर मैं इसे क्लोज कर दूँ, आई विल क्लिक ऑन द क्रॉस बटन और मैं अपनी इसी फाइल को दोबारा से ओपन करती हूँ तो ये देखें मैंने क्या किया, उसको टाइप करके दोबारा से सेव किया और मेरा उसी फाइल में अपना जो डाटा है वो सेव होता जाएगा. अब नेक्स्ट देखते हैं हम सेव एज. अब हम क्लिक करते हैं अगेन फाइल बटन एंड नाउ आई विल चूज सेव एज. नाउ आई विल चूज सेव एज. अब मैं सेव एज पर क्लिक करूँगी तो देखिए सेव एज पर क्लिक करने से क्या हो रहा है, मेरे पास एक न्यू विंडो अपीयर हो रही थी. अदरवाइज जबकि मैं सेव पर क्लिक कर रही थी तो क्या था कि वही काम सेव होता जा रहा है. और अगर मैं सेव एज पर क्लिक करूंगी तो ये देखिए वो मुझे एक न्यू विंडो दे देगा. वो कह रहा है कि अब आप किसी और लोकेशन पर उसको सेव कर सकते हैं या किसी और नेम के साथ उसको सेव कर सकते हैं. सो मैं कर देती हूँ डॉक्यूमेंट्स में सेव. मैं कर देती हूँ डॉक्यूमेंट्स में कंप्यूटर के नेम से COMPUTER सेव. ठीक है, तो अब मेरी 2 फाइल्स क्रिएट हो चुकी हैं. मैं ये देख लेती हूँ. माई कंप्यूटर आप ओपन करेंगे अपना डॉक्यूमेंट्स और यहाँ पर आपको मिलेगा कंप्यूटर के नेम से ये फाइल. आप डबल क्लिक करें, इसे ओपन करें तो देखें आपकी एक फ़ाइल डॉक्यूमेंट्स में सेव है और एक डेस्कटॉप पे. सो नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज. सेव से आप जब भी अपना डाटा सेव करेंगे, फर्स्ट टाइम कोई ड्राइंग कर रहे हैं या कोई टाइपिंग कर रहे हैं या वट एवर यू आर टाइपिंग, तो आपने फर्स्ट टाइम सेव पर क्लिक करना है और उसके बाद उसी फाइल में अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली सेव पर क्लिक करते जाएंगे. फाइल बटन पर क्लिक करना है आपने, ऑफिस बटन पर, एंड देन यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन सेव. अगर आप चाह रहे हैं कि आप उस फाइल की लोकेशन चेंज करना चाह रहे हैं या उसका पाथ चेंज करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं मैं उसको किसी और लोकेशन में सेव करूँ या मैं उसका नेम चेंज करूँ, सो सिंपली आप ये यहाँ से अगेन क्लिक ऑन द ऑफिस बटन और आपने क्या करना है, सेव एज पर क्लिक करना है. तो जैसे ही सेव एज पर क्लिक करेंगे आपके पास अगेन एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा और आपने अपनी लोकेशन चूज करनी है. ठीक है, ये जो आपको लेफ्ट साइड पर ऑप्शंस मिल रही हैं इसका मतलब है लोकेशंस. फिलहाल आपने डेस्कटॉप पर सेव किया था, इसके अलावा यू कैन चूज एनी अदर लोकेशन लाइक यू कैन चूज D drive, E drive, where you want to save your file. So इस तरह से आप अपनी फाइल को easily सेव कर सकते हैं. Now let's see one more time what is the difference between save and save as. So let's revise the topic one more time. The topic is save and save as. Save ऑप्शन क्या करेगी, आप अपनी फाइल में अपने डाटा में लेटेस्ट आपने कोई भी चेंज किया हो तो आप उसे अपडेट कर सकते हैं और अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं. और जो सेव ऑप्शन है वो क्या कर रही है, वो आपको एक न्यू लोकेशन पर, आपकी कोई भी ओल्ड फाइल है उसको न्यू लोकेशन पर आप उसको सेव कर सकते हैं. दैट मीन्स कि आप किसी और जगह पर उसको सेव कर सकते हैं या आप उसे किसी और नेम से सेव कर सकते हैं. सो दिस इज़ अ स्मॉल इंट्रोडक्शन टू सेव एंड सेव एज. अब आपने क्या करना है, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में माई सेल्फ टाइप करना है. यू जस्ट हैव टू टाइप 5 सेंटेंसेज अबाउट माई सेल्फ. हर स्टूडेंट ने अपने अपने बारे में 5 सेंटेंसेस टाइप करने हैं एंड देन यू हैव टू सेव योर फाइल ऑन डेस्कटॉप. आपने डेस्कटॉप पर सेव करना है. अगेन उसी फाइल को आपने करना है सेव एज करना है. उसकी लोकेशन चेंज कर दें, आप कोई भी D ड्राइव सेलेक्ट कर लें या डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लें, इमेजेस में भी आप सेव कर सकते हैं. सो इस तरह से आपने उसकी लोकेशन चेंज करके देखनी है. सो आई होप दिस लेसन इज़ क्लियर टू ऑल द क्लास.
अब आपने इसी की प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद आपने मुझे गूगल क्लासरूम पे पिक्चर सेंड करनी है अपने होमवर्क की। एक आपके पास लोकेशन होनी चाहिए सेव की और दूसरी होनी चाहिए सेव एज की। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मुझसे गूगल क्लासरूम में पूछ सकते हैं।